Welcome to Chemistry Planet. Today we are going to discuss one more interesting topic in ultraviolet visible spectroscopy. This topic is very important for your BSc MSc net examination point of view, like Woodward-Fieser rule for conjugated dye system. So in the previous lecture of Woodward-Fieser rule for conjugated ion system, we have already learned different types of terminologies like homoannular dye system, heteroannular dye system, extra double bond conjugation, exocyclic double bonds, endocyclic double bonds, ring residues, and lot of things I have already learned in the previous lecture. But in this lecture we are going to discuss the calculation of lambda max for conjugated dye system. And conjugated dye system is classified into two categories: acyclic dye system and cyclic dye system. But the cyclic dye system is further delineated into two types: homoannular dye system and heteroannular dye system. In case of acyclic dye system, here the two double bonds are present in the conjugation, but both the double bonds are not present any ring, and this type of double bond or this type of dye is known as acyclic dye system. Sometimes two double bonds are present in this molecule and one double bond is present inside the ring and another double bond is present outside the ring, but both the double bonds should be in conjugation, and this type of dye is also known as acyclic dye system. So in case of cyclic dye system, it is classified into two categories: homoannular dye system and heteroannular dye system. Homo means same. When two double bonds are present in the same rings, then we it call as homoannular dye system. अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे, ए और बी, ये दोनों रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है, इट इज़ फ्यूज्ड सिस्टम, और दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन है, और दोनों डबल बॉन्ड्स ए रिंग में प्रेजेंट है, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज homoannular dye system. Means when two double bonds are present in the same ring, then we call it as homoannular dye system. तो अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे, इस सिस्टम में भी दो डबल बॉन्ड्स है लेकिन दोनों कंजुगेशन में है, लेकिन वो दोनों एक ही रिंग में प्रेजेंट है, ए रिंग में प्रेजेंट है, ये भी होमोएन्युलर डाई सिस्टम वाला मॉलिक्यूल है. फॉर दिस मॉलिक्यूल here is two double bonds are present in B system or B ring, so both the double bonds are in conjugation to each other, then we call it as homoannular dye system. So homo means same, and two double bonds are present in the same ring, then we call it as homoannular dye system. For heteroannular dye system means when two double bonds are present in different rings, then we call it as heteroannular dye system. So अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, दो डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड ए रिंग में प्रेजेंट है और ये डबल बॉन्ड बी रिंग में प्रेजेंट है, बट बोथ द डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन, देन वी इट कॉल एज हेटेरोएन्युलर डाई सिस्टम. सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, इस मॉलिक्यूल में भी दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन वो दो डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, बी और सी में प्रेजेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड्स आपस में कंजुगेशन में आनी चाहिए, तब जाके सिस्टम कंजुगेट होगा. बट बोथ द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग्स और सेपरेट रिंग्स, देन वी कॉल इट एज हेटेरोएन्युलर डाई सिस्टम. सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ दो रिंग है, दोनों फ्यूज्ड सिस्टम, ये फ्यूज्ड सिस्टम वाला कंपाउंड है, लेकिन ए रिंग की अगर हम बात करेंगे, ए रिंग में दो डबल बॉन्ड्स है और बी रिंग में एक डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखोगे,
ये होमो एन्यूलर सिस्टम भी है और हेटेरो एन्यूलर सिस्टम भी है, क्योंकि डबल सिंगल डबल यहाँ कंजुगेशन है, लेकिन दो डबल बॉन्ड्स ए सिस्टम में प्रेजेंट है या ए रिंग में प्रेजेंट है, एंड it is homoannular system. A is homoannular system, but this double bond and this double bonds, here is also conjugation. यहाँ भी conjugation में, यहाँ भी conjugation है और यहाँ भी conjugation है, मीन्स conjugation यहाँ से start होता है और यहाँ ये ख़त्म होता है, मीन्स यहाँ से conjugation start होता है और यहाँ इसका end point है या यहाँ तक end point है. डबल सिंगल डबल यहाँ भी conjugation, यहाँ भी conjugation, that means this compound has both the conjugations and it belongs both homoannular system and heteroannular system. In this case we select those system where there is maximum lambda max, so this system is an example of both in homoannular as well as heteroannular diene system. For exocyclic double bonds and एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स ये नाम से पता चलता है, एंडो मीन्स सेम, व्हेन द टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग और इनसाइड द रिंग, देन वी कॉल इट एज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए. यहाँ When two double bonds are present inside the ring, जब एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड्स है, लेकिन वो डबल बॉन्ड्स कभी कभार कंजुगेशन में होते हैं, कभी कभार आउट ऑफ कंजुगेशन में होते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड मस्ट इनसाइड द रिंग, डबल बॉन्ड्स और प्रेजेंट इनसाइड द रिंग. यहाँ दो डबल बॉन्ड्स है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड्स रिंग के अंदर है, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स और एंडोसाइक्लिक सिस्टम. तो इस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इस सिस्टम के अंदर दो रिंग्स है, वो भी फ्यूज्ड में है, ए और बी, लेकिन ए रिंग में दो डबल बॉन्ड्स है लेकिन दोनों कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है, ऊपर भी दो सिंगल बॉन्ड है, नीचे भी दो सिंगल बॉन्ड है, जबकि दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, तब जाके ये कंजुगेट होगा. लेकिन यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है, लेकिन हमें कंजुगेशन से कोई लेना देना नहीं है. हमें यहाँ देखना है कि डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होनी चाहिए, तब जाके ये होगा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या एंडोसाइक्लिक सिस्टम. तो बी में कोई डबल बॉन्ड नहीं है. तो अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे या इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल के अंदर तीन रिंग्स है ए बी सी, वो तीनों फ्यूज्ड है. लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखोगे, ए में एक डबल बॉन्ड है, बी में एक डबल बॉन्ड है, सी में एक डबल बॉन्ड है. इसका मतलब ये है, ए के लिए ये होगा एंडोसाइक्लिक, बी के लिए ये बॉन्ड होगा एंडोसाइक्लिक, सी के लिए ये बॉन्ड होगा एंडोसाइक्लिक. तो ए के लिए भी ये एंडोसाइक्लिक होगा, बी के लिए एंडोसाइक्लिक, सी के लिए एंडोसाइक्लिक. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. लेकिन इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स भी है, वो मैं आगे बताऊंगा. फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड आउट ऑफ रिंग में होगा. तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड्स रिंग के बाहर होंगे. अगर आप इस सिस्टम को गौर से देखोगे, इसमें यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें 6 डबल बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6. तो 6 डबल बॉन्ड्स आर इन आउट ऑफ रिंग. यहाँ कोई डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है. तो बाहर सब डबल बॉन्ड्स आउट ऑफ रिंग में है. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. इस टाइप को हम नाम देते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम. तो अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे, ए और बी, ए के लिए ये बाहर है, बी के लिए भी ये बॉन्ड आउट ऑफ रिंग है, ये बॉन्ड भी आउट ऑफ रिंग है, ये बॉन्ड भी आउट ऑफ रिंग है. ए के लिए भी ये एक्सोसाइक्लिक होगा, बी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक होगा. तो यहाँ कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो रिंग के अंदर है.
तो ये सिस्टम भी एक्सोसाइक्लिक सिस्टम होगा। तो अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, इसमें एंडोसाइक्लिक भी है क्योंकि ये बॉन्ड ए के लिए एंडोसाइक्लिक होगा, ये बॉन्ड बी के लिए एंडोसाइक्लिक होगा, ये बॉन्ड सी के लिए एंडोसाइक्लिक होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये बॉन्ड सी के लिए एक्सोसाइक्लिक है बेटा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी ये बॉन्ड आउट ऑफ रिंग है, तो इसी तरह ये बॉन्ड भी आउट ऑफ रिंग सी के लिए ये एक्सोसाइक्लिक होगा, बट बी के लिए ये एंडोसाइक्लिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, लेकिन 3 एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे ए बी एंड सी, ए के लिए भी ये एक्सोसाइक्लिक होगा, बी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक होगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये ए और बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को देखोगे, ये बॉन्ड बी और सी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज आउट ऑफ रिंग, ये दोनों रिंग के बाहर है, इसलिए ये बॉन्ड इन दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा, और ये बॉन्ड इन दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा। इसका मतलब इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है एंड नो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज हियर। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे ए बी सी, इसमें 3 रिंग्स फ्यूज्ड है, ए बी सी रिंग। तो ए के लिए ये होगा एंडोसाइक्लिक, बी के लिए ये बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा एंडोसाइक्लिक, सी के लिए ये डबल बॉन्ड होगा एंडोसाइक्लिक। लेकिन अगर ए और बी को हम सेपरेट लिखेंगे, आपको पता है ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब ये है ए के लिए ये जो ए वाला कंपाउंड है, ए के लिए ये बॉन्ड होगा एक्सोसाइक्लिक, दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक फॉर ए एंड एंडोसाइक्लिक फॉर बी, और ये बॉन्ड बी के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड ए के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा, ये बॉन्ड बी के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा, लेकिन सी के लिए ये बॉन्ड एंडोसाइक्लिक होगा। इसका मतलब ये है इसमें 3 एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है, बट दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक फॉर ए रिंग and this double bond is exocyclic for B ring. That means there is 2 exocyclic double bonds and 3 endocyclic double bonds. ये मैंने सेपरेट लिखा है यहाँ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक होगा बी का, क्योंकि ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स एंड 3 टाइप्स ऑफ एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे बेटा, ए बी सी मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में हर जगह कंजुगेशन है, बिकॉज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड दिस इज डबल, दैट मीन्स हेयर इज कंप्लीट कंजुगेशन, यहाँ कंप्लीट कंजुगेशन है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे ए बी और सी रिंग में, इस ए के अंदर ये एंडोसाइक्लिक होगा, ये भी एंडोसाइक्लिक होगा ए के लिए, बी के लिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड्स बी के लिए एंडोसाइक्लिक होंगे, सी के लिए ये दोनों एंडोसाइक्लिक होंगे। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, आपको पता है जो बॉन्ड आउट ऑफ रिंग होगा, आपको पता है बेटा ये बॉन्ड जो है ये सी के लिए आउट है, क्योंकि सी रिंग के लिए ये आउट ऑफ रिंग है, ये भी आउट ऑफ रिंग है, बिकॉज बट देयर इज कंजुगेशन, यहाँ भी कंजुगेशन, ऊपर भी कंजुगेशन, नीचे भी कंजुगेशन। लेकिन सी के लिए ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक होगा, ये बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक होगा, क्योंकि अगर हम इस सी को सेपरेट लिखेंगे, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से होगा, ये नीचे वाला जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से होगा। दैट मीन्स सी के लिए ये दोनों बॉन्ड्स एक्सोसाइक्लिक होंगे, बट बी के लिए ये एंडोसाइक्लिक होंगे। दैट मीन्स देयर इज टोटल 1 2 3 4 5 6 7, देयर इज टोटल 7 एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, but 2 exocyclic bonds, 2 exocyclic double bonds. So this was all about endocyclic double bonds and exocyclic double bonds.